आज हम we will study atomic structure. Atomic structure is a fundamental chapter in the chemistry and the in this as evolution of science, material science, or the chemistry, or the uh, whatever is the general philosophy. The core is similar. तो ओ लेवल में इसको is read as a second chapter. So we will present basically how we will visualize the atom. हम तो physical we usually see physical things. So but atom is not a visually, I mean we cannot see it with our naked eyes. So how can we compare its size? So if we have a die that is usually 1 centimeter की होती है and the grain of sand is 1/100 centimeter and bacteria is 10,000 centimeter of the size of the die, और hemoglobin जो है this is 1 million size of the one dice. But the atom is, if we compare it, it's a 100 million the size of the dice. See how small is this atom. How many there are total, how the universe and the earth and the moon and everything, how many atoms are there to make it? Basically there are 118 total element discovered till now, और उसमें से there are 94 elements are natural and the rest, the remaining, are artificial. And out of these 118, only hydrogen and helium make up most of the universe. That is 99% of the universe is made of helium and hydrogen is the top, that is 92%, and helium is 7% just. जबकि अर्थ जो है that 8 element makes capture 98% of the earth, और इसमें से भी only silicon and oxygen make 2/3 portion of the earth crust. And human body 65% is oxygen, 18% carbon, 10% hydrogen, 3% nitrogen, 2% calcium, 2% others. And in others, the micro elements, these are many elements that makes the composition of the human body. जो इस तरह रिलीजन में भी कहा जाता है कि आदम की मिट्टी को मुख्तलिफ जगहों से उठाया गया था. So that's the 2% is and the carbon is 18%. जो idea of atom है, how it evolved in the West, it's not just the Western philosophers were doing work on this. There was a lot of work ongoing in the India subcontinent, and that Mughal India. तो उसमें शाह वलीउल्लाह ने भी अर्थ के बारे में अपनी किताबों के अंदर काफ़ी लिखा है, वजूदुल बालगा के अंदर. Although it's read as a religious perspective, but if the scientists read these books, he reads as a evolution of scientific ideas. But उसके बाद scientific theory यहाँ evolve नहीं हुई है. There are very political reasons. But till 1750s, he presented very good idea of the materials, and he also presented idea of the atom. But we cannot present in the books because most of the academics books are written from a Western perspective. So let's go ahead to the idea how the West presented this idea in the John Dalton 1807 के अंदर 1807 के अंदर. It was later than the Shah Waliullah the Hujjatul Balagha book was written. 1897 के अंदर electron was discovered. 1897, just 90 years after
that was experimental finding, but the 1807 John Dalton theory was just a theory. That was there was no scientific evidence. It was just an observation, sort of raw observation. फिर 1897 के बाद 1897 के बाद proton was sooner discovered, and in the 1932 the neutron was discovered, and then the boom came in the nuclear science. That was the purely Western invention. Current chemistry cannot be explained without atom, because every chemical reaction has a has to deal with electron transfer and has to deal with the atom. So all atoms are same, or all atoms are same? No, all are not same. There are various brothers of it. I mean, element is a family, and there are isotopes that are brothers. I mean, यूजली द फैमिली में एक एटम जो होता है वो ज़्यादा होता है उसकी परसेंटेज, और बाकी जो एटम होते हैं उनकी कम होती है, इसलिए उनका द नेम इज़ आइसोटोप. ओके, लाइक कार्बन हैज़ अ कार्बन 12 आइसोटोप है, और कार्बन 12 के अलावा कार्बन 14 है. ठीक है, तो ये अब हाउ द आइसोटोप्स डिफर फ्रॉम ईच अदर. आइसोटोप डिफर फ्रॉम ईच अदर because of the number of neutron present in the atoms. Some atom has a more neutron than others, that's why they make isotopes. Generally the atomic mass जो होती है वो हम कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड ले लिए. दुनिया में कोई चीज़, सारी जो मेजरमेंट्स है ना वो एब्सोल्यूट मेजरमेंट्स नहीं होती हैं, रिलेटिव मेजरमेंट्स होती हैं. मसलन जब किलो को कहा गया कि ये किलो है, तो वो किससे पता चला कि 1 किलो है? वो यही था कि एक खास सर्टन मैस को इकट्ठा करके आ गया ये 1 किलो है. अब उससे ऊपर और नीचे सारी उसके हिसाब से मेजर कर ली गई. जिस तरह मीटर को कहा गया कि ये लेंथ 1 मीटर है, और इसके ऊपर नीचे उसके हिसाब से फिर मेजर कर ली गई. इसी तरह एटॉमिक मैस को भी कहा गया, कार्बन की कहा गया ये 12 है. ओके, क्योंकि 12 इसमें न्यूक्लियॉन्स डिस्कवर हुए, तो ये कहा गया 12. अब इसके हिसाब से बाकी सारी रिलेटिव मेजर की गई. Okay, now let's see the isotopes of hydrogen. H11, ये H12 जिसे हैवी ड्यूट्रियम कहा जाता है, H13 ट्रीशियम जिसको कहा जाता है, ये रेडियो एक्टिव होती है. रेडियो क्यों होती है? क्योंकि ये न्यूक्लियस हैवी हो जाता है, इसलिए वो बीटा पार्टिकल एमिट कर देता है. जबकि H11 लाइटर होती है, H12 से हैवी होती है. इस तरह कार्बन के 12 हैं, 6 प्रोटॉन है, उसमें 6 न्यूट्रॉन है, और न्यूक्लियन 12 है, इसलिए 12 उसकी मैस है. 6 प्रोटॉन है, इसलिए प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर उसका 6 है. कार्बन 13 में 13 न्यूक्लियन नंबर है, यानी कि 7 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन है, इसलिए और उसका प्रोटॉन नंबर 6 है. प्रोटॉन नंबर सारे सेम होता है फैमिली का, सिर्फ एटॉमिक मैस या मैस नंबर डिफरेंट होता है. चूँकि न्यूट्रॉन मैस नंबर में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो देखें ये ऊपर 6 है, प्रोटॉन नंबर 6 सबका, जबकि न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है, 6 7 8 है, इसलिए उसकी एटॉमिक मैस डिफरेंट है. इसलिए वो ये 3 आइसोटोप हैं, 12 13, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14. So that's another view. This is the center, is the nucleus, that is called heavy part, but it's less, very compact mass, less volume but heavy. So in proton, in hydrogen H11 is 1 proton, in deuterium is 1 proton 1 neutron, in tritium is 1 proton and 2 neutrons. तो इसलिए ये ट्रिशियम है. अब सिमिलरली कार्बन, इसमें सेंटर में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन. दैट्स अनदर वे टू राइट, आई प्रीवियसली एक्सप्लेन इट. तो इसमें कार्बन 14 कौन सा है? ये बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि 8 + 16 6 14 हो जाते हैं, तो 14 इज़ द आइसोटोप नंबर. Okay, there are some questions. An atom of neon has 10 proton, 10 electron and 11 neutron. How many nucleon does it contain? तो कितने होंगे? जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस वाले पार्टिकल्स को कहते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को. 10 + 11 21. What is the difference in terms of subatomic particle between atom of chlorine 35 and atom of chlorine 37? तो simple is that chlorine 35 में 35 है न्यूक्लियॉन्स,
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और क्लोरीन 37 में 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, ये डिफरेंस है। Question 8. By considering the subatomic particle present, explain why an atom of nitrogen is electrically neutral. वो न्यूट्रल क्यों है? सब एटॉमिक पार्टिकल तो होते न्यूट्रल इसलिए होता है कि बिकॉज द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस आर इक्वल, दैट्स वाई इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होता है। अब ये देखें आइसोटोप की फिजिकल प्रॉपर्टीज। द राइट साइड आल्सो हैज अ आइस क्यूब and floating on the surface of the water, while the left side, left towards me, is a proton, is a water that has ice, that ice is present in the bottom, it's not floating. What's both ices physically, both look ices, ice लगती हैं, but one is drawn and one is floating because the right side ice जो है वो H2O से बनी है, जिसमें H जो है वो हाइड्रोजन है जो कि फर्स्ट आइसोटोप है, जबकि सेकंड आइस इज मेड ऑफ द ड्यूट्रियम, हैवी वाटर वाली आइस है, ड्यूट्रियम से बनी है H12 से, जिसमें 2 न्यूक्लियन है, तो वो हैवी है। तो चूँकि वो पानी से हैवी है तो इसलिए वो नीचे बैठ गई है, बाकी पानी है ना, तो राइट में द वाटर से के इक्वल है तो ऊपर तैर रही है। सो द फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी डिफरेंट ऑफ द आइसोटोप्स बट द केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डेंसिटी और रेट ऑफ डिफ्यूजन है। Relative atomic mass, as I already told, various, for example, this magnesium 24, 25, 26. तो मैग्नीशियम को हम 24 यूजली लिखते हैं, लेकिन उस मैग्नीशियम के अंदर 24 में 78% कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नीशियम 24 की है, 10.1% कंट्रीब्यूशन 25 की है, और 11.3% कंट्रीब्यूशन 26 की है। अब व्हेन वी विल गोइंग टू फाइंड द मास, एटॉमिक मास, we will multiply 24 with 78%, we will divide by the 100, and plus we will add 25 multiplied by 10.1, and then we will add 26 multiplied by 1. That makes 2432.7, और इसको 100 पे डिवाइड कर दें तो 24.32. This is the mass of the family, this is the mass of the element, not one atom or isotope. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन कैसे होती है? तो द पीपल, यू नो, इफ वी पुट सम साल्ट इन द फ्लेम, डिफरेंट कलर्स हमें मिलेंगे। ये आतिशबाजी, फायर वर्क्स, वी आल्सो सी डिफरेंट कलर्स। तो ये कैसे होता है? बिकॉज दिस एवरी ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज बिकॉज ऑफ द this physical, this manifestation is because of the electrons. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। और जब हम हीट करते हैं उसको, या इलेक्ट्रॉन उसमें आतिशबाजी या फायरवर्क्स में भी हीट अप होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स चेंज द लेवल, इट गोज फ्रॉम फर्स्ट लेवल टू सेकंड लेवल और थर्ड लेवल, एंड देन दे रिटर्न, दे emit energy in the form of the light. So Bohr came up with the modern theory at that time, not this time. At that time, the modern theory कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आर इन द ऑर्बिट्स में होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं। उस टाइम पे ये एक मॉडर्न थ्योरी थी। और इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स को इलेक्ट्रॉन शेल्स कहा गया। ऑर्बिट तो यूजली ग्रेविटी या मैस बॉडी के हिसाब से था, ये टर्म यूज़ होती है ऑर्बिट, सोलर सन ऑर्बिट और इस तरह अर्थ ऑर्बिट। शेल्स इनको कहा गया, शेल्स दैट आर फर्दर फ्रॉम न्यूक्लियस, उसको हायर, उनकी हायर एनर्जी है। द शेल्स आर फिल्ड स्टार्टिंग विद वन विद लोएस्ट एनर्जी, जो न्यूक्लियस के करीब होता है उसकी लोएस्ट एनर्जी होती है, और जो दूर होता है उसकी ज़्यादा। फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 होते हैं, फिर सेकंड में 8 होते हैं, थर्ड में 18, एंड इस तरह इसका फार्मूला बना। द सेकंड एंड सब्सिक्वेंट शेल्स कैन होल्ड 8 इलेक्ट्रॉन टू गिव अ स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो 8, 18, 2, 8, 18 होती है, ये स्टेबल होती है कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैसेस में यूजुअली यही होती है।
अब ये देखें, ब्लू इज़ द न्यूक्लियस और उसके फर्स्ट है उसमें 2 होते हैं, फिर सेकंड है उसमें 8 होते हैं, थर्ड लेवल कैन फिट इनटू दिस टू गिव अ स्टेबल अरेंजमेंट। अब ये देखें, फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, ये सारे एलिमेंट सिंबल्स हैं, इनकी एटॉमिक नंबर है इन सब का 1 2 3 4 15 तक देखें तो जो फर्स्ट शेल होगा उसमें 2, मतलब पहले में हाइड्रोजन में तो देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए उसमें फर्स्ट शेल में एक ही है, जबकि हीलियम में 2 हैं तो 2 हैं, उसमें सेकंड में 0 है। फिर आगे बेरिलियम में फॉर एग्जाम्पल 4 हैं तो 2 हैं फर्स्ट में एंड 2 आर द सेकंड। बोरान हैज़ अ 5 2 इन द फर्स्ट, बिकॉज फर्स्ट में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, सेकंड इज द 3 द सेकंड शेल। सो ये सेकंड में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, मसलन नियॉन में 8 है ना, 2 इन द फर्स्ट एंड 8 इन द सेकंड, थर्ड खाली है। इसमें सोडियम में 2 8 1, अब 8 सेकंड जो है वो 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, इस तरह थर्ड में 18 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो आप देखें एक आर्डर बनेगा, आगे आप चल के देखेंगे। लेट्स सी दिस, ओके, वी विल एक्सप्लेन इट लेटर। तो जो जो हम फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है तो एनर्जी भी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इज इट द मेटल और द नॉन मेटल प्रेजेंट इन द साल्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर एमिटेड इन द फ्लेम। तो ये मेटल ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इजीली आयोनाइज हो जाती है। नॉन मेटल को तो आयोनाइज करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ पोटेंशियल। इज द फ्लेम कलर सीन द रिजल्ट ऑफ केमिकल फिजिकल चेंज। ये केमिकल चेंज की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो केमिकल और फिजिकल में क्या फ़र्क है, इन द केमिकल चेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र is happened. So this is because of electron transfer. Table 2.7 shows general relationship between color, frequency, energy of the light released. The bigger the change in the energy level of electron, the greater the energy of the light release. तो देखें ये रेड में फ्रीक्वेंसी कम है, इसका मतलब सबसे कम एनर्जी इसमें रिलीज होती है। तो ग्रीन में उसके मुकाबले में ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। फिर ऑरेंज है उसमें 600 से 620 और है, फिर ब्लू है, फिर वायलेट। तो इस तरह से ये इंक्रीजिंग आर्डर है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यू सी द lithium, sodium, potassium, this is the one group. Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium, this is second group. बोरान, एल्यूमिनियम थर्ड, कार्बन सिलिकॉन फोर्थ। तो देखिए रेड में देखें देयर इज वन, फर्स्ट में 1 है ग्रुप के, सेकंड में 2 है, थर्ड एल्यूमिनियम ये 3 है, फोर्थ में कार्बन सिलिकॉन के बाद 4 है, फिर हर 5 है। तो ये जितना भी पीरियड नंबर, जितना ग्रुप नंबर है उतने ही आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो दिस इज द ऑर्डर। So this was the theory on the basis of periodic table was established. That's all about the atomic structure, जो कि O level में जितना ही होना चाहिए। So there are some questions. What is the maximum number of electron that can fill the first and the second shell of atom? First में maximum 2 आ सकते हैं, I already explained. In the second there are 8. What is the electron arrangement of a calcium which has atomic number of 20? इसमें 20 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? फर्स्ट में 2 आएंगे, फिर सेकंड में 8, 10 हो गए, पीछे बचे 10। तो थर्ड के अंदर 10 आ जाएंगे, क्योंकि थर्ड मैक्सिमम कैन कंटेन 18 बट देयर इज स्टिल रूम फॉर 8 मोर। तो 2 10 and 10. Carbon 12 and carbon 14 are different isotopes of carbon. How many electrons are there in an atom of each isotope? So how many electrons are there in an atom of each isotope? At electron same होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। कार्बन 12 और कार्बन 14 में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जस्ट न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एटम ऑफ 4 एलिमेंट्स आर, ये है। तो वी हैव टू गिव आंसर। विच 2 एलिमेंट्स आर इन ग्रुप 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल? एक्सप्लेन योर आंसर। 4 में कौन कौन से हैं? एक तो ए होगा क्योंकि उसके आखिरी में 4 है, तो जितना ग्रुप नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सी भी होगा, ए और सी इज आंसर, बिकॉज दोनों में 4 है आखिरी में।
विच एलिमेंट इज अ नोबल गैस, एक्सप्लेन योर आंसर। नोबल गैस क्या होती है? जिसमें आखिरी में 8 होते हैं, तो डी इज द नोबल गैस। विच एलिमेंट which of these elements is in group 7 of the periodic table, explain your answer। 7 में कौन सा है? जो 7 में बी है, क्योंकि 7 बी के अंदर आखिरी में 7 है। Which two elements are there in third row period of periodic table, explain your answer। थर्ड पीरियड के अंदर जो होंगे उसके अंदर, लेट्स सी, वी गो बैक, ये थर्ड पीरियड है, ठीक है। उसमें 2 8 1 है, इसमें देखें आखिरी आखिरी में 1 2 3 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8। तो ये इस तरह की अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो ये देखें सी जो है 2 8 8 2 8 4 है, और डी जो है वो 2 8 8 है। तो 2 8 8 2 8 4 ये दोनों थर्ड में है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन का सी और डी, ठीक है। क्वेश्चन पार्ट डी का जो आंसर है वो ऑप्शन सी और डी है। व्हाट इज द प्रोटॉन नंबर ऑफ एलिमेंट सी? एलिमेंट सी का प्रोटॉन नंबर क्या है? जितना एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। तो ये 6 ही होगा, एक्सप्लेन योर आंसर। So that's all.